Good afternoon, ma'am. Hi Priyanshi बच्चा, good to see you online dear. Yes, ma'am. कुछ बनाया बच्चा आपने? कुछ बना Yes, पाए? ma'am. I have colored the background and kept it. Me. Thank you. हाँ Thank you, Auntie, for reminding me. So चलिए what we are going to do is we are going to do the base here. Thank you so much for reminding. नहीं तो पूरी मेहनत चली नहीं, जाती। क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंट्रिकेट वर्क भी है और फिनिशिंग है ना इसका, हाँ तो जी, रिकॉर्ड हो रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सबको जी फायदा जी होगा। जी, absolutely. So thoughtful, Auntie. तो इस तरीके से हम लोग Vandana, Auntie, Ritu, these are the people who are there from my first workshop. So they will never let me go wrong anywhere. And I'm so obliged and grateful for them. Thank you for being there and guiding me in this journey. Not at all, beta. It's such a pleasure to be with you always. We always learn something new and different and lovely from you. Yeah, Thank you for your kind words. thank you, Auntie. तो इस तरीके से मैंने क्या बनाया है यहाँ पे देखिए. So I have created three shades. Not create. I have created only one. This one. So we have taken white, red, and pink. ठीक है? ऐसे पहले आप बना लीजिए. देखो यार, अगर मैं म्यूट करने में लगूंगी ना तो प्रॉब्लम हो जाए. How about now? Okay, हो गया. चलिए, अब हम क्या करेंगे, हम पहले व्हाइट कलर लेंगे और हम पहले पूरे एलिफेंट में अपने व्हाइट कलर कर देंगे. एंड रिमेम्बर, अगर आप कैनवस पे कर रहे हैं ना, तो या तो आप हमेशा स्टार्ट करते वक्त ना कलर कम लीजिए और उसको स्प्रेड करिए. अगर आप बिगनर हैं तो ठीक है, ज्यादा कलर लेके क्या होता है फिर वो हैंडल नहीं होता है. धरिणी ने मुझे अभी पिक्चर भेजी है, तो उनका क्या हुआ, वो थोड़ा सा वो स्प्रेड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा दिख रहा है वो कलर ना. अभी मैंने क्या किया, हल्का सा मैंने व्हाइट में हल्का सा पिंक का टच दिया और उसको ऊपर भेजा, तो वो थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट का टिंच, आई होप विजिबल है. तो हम उसको नीचे, जो पिंक कलर है वो हमेशा सिर्फ बॉटम में रहेगा बॉडी के, ठीक है ना. तो जैसे पैर की तरफ बहुत हल्का सा,
Give me a second. Actually, I'm getting an important call. I'll just join back. तो कलर को इतना स्प्रेड क्यों कर देती पूरे इसमें पैलेट में? नहीं करना चाहिए, तब ना फिर अच्छा नहीं बनेगा वो। नहीं, सांस पूरा रोक के थोड़ी करना होता है। I request all to please mute yourself. काफी सारे लोगों ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। सोनल जैन करके कोई सोनल जैन करके। कौन सा 7 It is looking very beautiful. लग रहा है। मैम आपका माइक म्यूट है क्या? Actually, Sonal ji is on some important call from her office, so she'll be unmuting herself after some time. Okay, So ma'am. please Okay. be patient. Okay. But I request all of you to mute yourself because some of you have not muted yourself and so much noise is coming. पता नहीं कौन है, कोई तो है कौन सोनल जैन करके, लेकिन उसकी जगह आ गई वो लड़की जो सोनल जैन है। सॉरी, आई एम सॉरी। तो मैंने क्या किया है ना। लक्ष्णया जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अरे वाह रितु जी, आ गए आप। So everyone, Ritu has a story to tell us. जो हमारा मॉर्निंग में सेशन मिस हो गया था स्टोरी का, so there is a story behind this elephant which Ritu ji told me and I was not aware of it, but I hope everyone is fine if I ask her to tell us the story of this elephant. Can I get a yes or a no? Hello? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So Ritu ji, are you ready?
Yeah, I'm ready. Thank you so much for giving me this opportunity. Nothing like that. We thank you so much for enlightening us with your spiritual touch. तो अभी एक मिनट मैं पहले बता दूं मैंने क्या किया है हल्का सा व्हाइट और वो जो पिंक हमने बनाया था वो सून के ऊपर और बॉडी में नीचे नीचे पार्ट में दिया है ठीक है दिस इज और अब मैं क्या कर रही हूँ इतनी देर में ऋतु जी बताएंगी मैं व्हाइट कलर पूरा बॉडी में फिल कर रही हूँ चलिए ऋतु जी आप स्टार्ट करिए Okay. So as Sonal is teaching us how to paint this elephant, so when I saw this elephant, it reminded me of the story of this elephant. You know, once what happened that this elephant in his last birth, he was a king. His name was King Indradyumna. So he was a very pious king and he used to do very good deeds. Excuse But me, one day ma'am. when he was Excuse me, ma'am. Your voice is echoing. yes, आपकी आवाज Ma'am, echo there कर is रही so है. much rush. yeah I don't know why this is there. Hello, please mute yourselves. Everyone first mute themselves maybe I'm muting Ritu now you unmute yourself okay. Hello, so shall I start? Yes, ma'am. Okay. So once the king Indradyumna was sitting in his palace, and a saint, a rishi, came to his palace. But what he did, he kept sitting. He didn't get up from his throne and welcomed him. So he kept sitting on his throne. So it was a very disrespectful for a king to not welcome a saint, because it was told in our Hindu culture that we have to get up and welcome our guest. And if they are saintly person, if they are very elderly person, we have to have get up and welcome them with garlands and whatever we can offer them. So he didn't get up. So Rishi, the saint person, he got anger and he cursed him that you are sitting on a throne and you are so egoistic that you didn't welcome me. So I curse you to become an elephant in your next birth. So that the king Indradyumna, he became king elephant, but otherwise he was a very pious person. So when in his next birth he became an elephant, he was enjoying. He has many wives, many kids, and he was enjoying with them so much. So one day he went to a pond to take a bath in it. So when he was taking an bath and enjoying and playing with his family members, one crocodile came and he hold the king Indradyumna, the elephant king Indradyumna feet in his mouth. Now the elephant is so much powerful that he can kill the crocodile with his feet. If he thump his feet on the head of the crocodile, he can kill him. But since the crocodile was in water, he is an aquatic animal, so he is much more powerful than a terrestrial animal, which is elephant. So he kept pulling, and they both were fighting. The elephant was trying to protect him, but crocodile was pulling him down. Even his family members also tried to protect him from the crocodile, but they couldn't. Maybe it was Lord's will. So when the king Indradyumna elephant saw that his end is near, what he did, he reminded, like all his pious deed made him remind that he was a devotee of the Lord in his past birth. So he took a lotus flower in his trunk, and he offered that lotus flower and offered it to the Lord Vishnu. So and offered many prayers to him. So when Lord Vishnu heard these prayers, he immediately came down and like he cut the head of the crocodile with his Sudarshan chakra. And this way, the elephant was protected, and the crocodile, who was a demon in his last birth, and he was also cursed.
because he was even he was also trying to make fun of some rishis by holding their legs when they were bathing in the river. So those rishis also cursed that demon that you should become a crocodile because you are trying to hold our feet, and you are trying to disturb our prayers. So when that demon regretted and offered his sorry to those rishis, so those rishis said that you will get liberated when Lord Hari in his next birth will come, and he will liberate you. So that way that demon was also liberated because Sudarshan Chakra cut his head, and the elephant who was King Indradyumna, he was also protected. So we learned from this story, like as this elephant is also holding a garland in his trunk. So we learn from the story that we should always respect our elders, no matter how high post we are holding, no matter how rich we are, but we should always honor our elders. We should always offer our respect to all the saints and all the rishis, everyone who is elder to us. And also that we should always be prayerful to the Lord. We should always be grateful to the Lord, because because this human birth has given us so much of advantage that we can pray. Otherwise animals can't pray, but we as a human can pray. We can thank the Lord. We can we should be grateful to the Lord that he has given us so much. We have eyes, we have nose, we have hands, we have feet, we have food to eat, we have a home to rest. Otherwise so many thousands of people are there in the world who don't have anything to eat or to rest or to take a shelter. So we have everything, so we should always be grateful to the Lord. And that's it. Thank you, Sonal. Nice story. Thank you, ma'am, for this story. Ma'am, for telling story. Very nice. Thank you. Very nice. Thank you so much. Yeah. Thank you, Ritu ji. तो अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ? I have done everywhere the white color. Everywhere I have given the white coat. Okay. अच्छा, white coat देने का रीजन क्या है? Although canvas तो white होता ही है, बट हम लोग फिर भी white coat किस लिए देते हैं? वो स्मूथनेस आती है ना? तो इसलिए हम लोग हमेशा white coat देंगे. मैम ये पिंक शेड कैसे किया है? व्हाइट करने के बाद उसके ऊपर पिंक शेड दिया है या पहले ही दे दिया है? मतलब पहले ही दे दिया. पहले ही दे दिया. ओके. और उसके ऊपर अब मैं ये देखिए ट्रंक में आप देख पा रहे होंगे, मैं उसके ऊपर व्हाइट शेड दे रही हूँ, तो उसे एक और दूसरी लेयर मिल जा रही है. क्योंकि हमें ना एलिफेंट इसमें हमें लेयर्स देनी है इनके ट्रंक को. ठीक है, इस तरीके से ये पर जो शेड आपने बनाया था मैम वो तो बहुत डार्क दिख रहा था, मतलब पिंकिश टाइप्स, और इसमें तो बहुत लाइट दिख रहा है. हाँ देखिए, ये जो शेड था इसको मैंने ऐसे टच किया जब मेरे पास व्हाइट था. ठीक है, और उसको मैंने ऐसे जब स्प्रेड किया तो वो ऐसे लाइट हो गया. ओके मैम. मैंने सब कुछ आपके सामने किया है. तो ये व्हाइट शेड हो गया हमारे एलिफेंट का. कहीं से बचा है, बच गया है. आपको पता चलेगा जब आप अपने कैनवस पे जब आप व्हाइट कलर करोगे ना, तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि जब हमने व्हाइट नहीं किया था तो कैनवस कैसा था और व्हाइट करने के बाद कैनवस कैसा हो गया. ठीक है, तो आप यू कैन फिगर इट आउट वेरी इजीली कि ये हमने कलर किया है और ये हमने कलर नहीं किया. ठीक है, उसकी पूंछ में भी ये मैं राउंड ब्रश का यूज कर रही हूँ. अगेन इट्स अप टू यू, अगर आप फ्लैट ब्रश से कंफर्टेबल हो. मैं आपको बोलूंगी अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आप राउंड ब्रश यूज करो फिलिंग के लिए. ठीक है, ये हो गया. ये हमारा
एलिफेंट की कलरिंग का ये पार्ट हो गया, फुल वाइट जो करना था हमें। अब हम मैम क्या लास्ट करेंगे? में आप एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, मैं रिपीट कर दूंगी। अब हम एलिफेंट के ईयर पे आते हैं, ठीक है? तो ईयर के लिए हमने वो जो कलर किया था ना, उसी को हम यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने थोड़ा सा, ये जो हमने बनाया है रेड कलर लेकर के, ये जो हमने बनाया थोड़ा सा, इसको मैं पानी ले रही हूँ थोड़ा सा कलर, ठीक है? मेरे को शेड्स बनाने हैं। अब पहले मैं पिंक कलर लूंगी और मैं जो इसकी ईयर की बाउंड्री है ना, उसके ऊपर मैं ये पिंक कलर कर दूंगी। और इसकी बाउंड्री पे अभी ब्लैक कलर से हम आउटलाइनिंग तो देंगे ही, ठीक है? अगर हम देखें तो ये हमारा ये है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपना ब्रश क्लीन करेंगे, या हम एक ड्राई ब्रश भी ले सकते हैं। और हम क्या करेंगे ना, वाइट कलर लेंगे पहले, और वाइट कलर से इसको हम भरेंगे। और अब जब हम भरेंगे ना, तो हम इसको मर्ज करेंगे। देखिए ये जो फाइन लाइन है ना, इसको हम ब्रश ले लीजिए और हम ये दोनों कलर्स को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है? ताकि ये लाइन नहीं रहे। इसी तरीके से यहाँ पे भी, मतलब हमारा मेन इंटेंशन क्या है यहाँ पे, ये जो फाइन लाइन, ये जो लाइंस दिखती है ना, इसको नहीं दिखना है। तो फिर से यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर किया, इसको मर्ज कर दिया इसमें, ठीक है? और आप देखो इसका जो ईयर है ना, हम ये कमल की शेप, कमल के कलर का और कमल के जैसा बनाएंगे। जो ऋतु जी ने हमें स्टोरी सुनाई है, लिंक कमल के फ्लावर से है। यहाँ पे कमल का फ्लावर है, हम काइंड ऑफ उसका शेड दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? अगेन आपको जैसा जैसा देना है, जहाँ डार्क लाइट जैसे आपको लगता है आप कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, इसमें अलग अलग जगह व्हाइट कलर स्प्रेड कर रही हूँ। और फिर मैं अपना ड्राई ब्रश लेकर के इसके साथ इसकी मर्जिंग करूंगी। ये जो फाइन लाइंस दिख रही हैं, ठीक है? इस तरीके से आया समझ? ओके, 40 मिनट्स हो जाएगा तो क्लास फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 मिनट्स है। दिस इज द वे। सॉरी, इसमें पानी था। गलती से मेरे इसमें पानी आ गया था, ठीक है? कैनवस है तो ये पानी सोख लेगा, अगर पेपर होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो दिस इज द वे हम लोग इसको मर्ज करेंगे कलर्स को। ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है इतने में? इस तरीके से आपने कलर दिया। जैसे आप चाहे तो थोड़ा सा पिंक कलर बना करके
हल्का सा इसको आप मेरे ब्रश के मूवमेंट्स देखिएगा, क्योंकि मुझे इसको एक मर्ज लुक देना है ना, तो मैं इसलिए इस तरीके से देंगे। तो ये हमारा ये तैयार हो गया। एनी डाउट्स इन दिस? अच्छा, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा और डेप्थ दे सकते हैं, और डेप्थ दे सकते हैं। आई होप विजिबल है और समझ में आ रहा है ना? चलिए अब इसकी ट्रंक पे चलते हैं, इसकी ट्रंक करेंगे। एक मिनट, मेरे हाथ में बहुत सारे ब्रशेस हैं। एक मिनट। अब हम लोग फिर से ट्रंक की तरफ आते हैं। तो ट्रंक में हमें कुछ नहीं करना, जो ये हमने कलर बनाया है ना, ये वाला, इसी कलर को लेकर के, डार्क जो ये कलर है इसको लेकर के इसमें कैसे बनाने हैं हमें शेप्स, कुछ नहीं, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऐसे 2 लाइन, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा रेड ज्यादा और वाइट कम। चलिए देखिए ऐसे 2 पैरेलल लाइंस, पतली पतली 2 पैरेलल लाइंस ऐसे देंगे ब्लू ट्रंक में, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 2 पैरेलल लाइंस। इस तरीके से आपने, समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लाइन देते जाएंगे। इसी तरीके से पूरा हमारा इनका सूंड हो गया, समझ में आया ना? और फिर बीच में एक डॉट देनी है, यहाँ पर ऐसे डॉट दे देंगे हम 2 इनके बीच में। थोड़ा सा इंट्रिकेट काम है, पेशेंस के साथ करिएगा, है ना? जल्दबाजी में मत करना। दिख रहा है ना? इस तरीके से। आई होप यू गाइज आर विद मी, क्योंकि इतनी शांति है, मुझे लग रहा है मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई हूँ। नहीं मैम, No, समझ ma'am, में you आ are रहा है ना, audible इसलिए। and visible. अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूंड हो गया, और ये हो गया। थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ।
ठीक है, अब इनकी हम बनाएंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, अभी यही वाला जो रेड कलर हमने लिया है ना, जो पिंकिश जो हमने ये सूंड के लिए लिया है, उसी रेड कलर को हम लेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं। अगर आपको इसको 3D लुक देना है तो आप क्या कर सकते हो, आप व्हाइट लाइनर लो। व्हाइट मैंने आपको व्हाइट आउटलाइनर भी लेने को बोला था, राइट? 3D आउटलाइनर मैंने ही नहीं लिया खुद, मैं अभी लेके आती हूँ। तो आप क्या करना, उससे इसको फिल कर देना पूरे को, और फिर उसके ऊपर ये कलर कर देना। नहीं तो अगर आपके पास रेड लाइनर है तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल इसको ये वाले पोर्शन को हम ये कलर से कर देंगे और बाहर हम लोग गोल्डन आउटलाइनर कर देंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे भी ये हमने एलिफेंट के को इस तरीके से फिल कर दिया। अगेन इस पे 2 लेयर करना, अगर कैनवस पे कर रहे हो तो हमेशा 2 लेयर करना कलर की, सूखने के बाद। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अभी इसकी ये जो ये वाला है ब्लैक कलर का काम हम लोग करते हैं बाद में, पहले अभी हम इनका ये बनाते हैं, जो गोल्डन का काम रह गया ना। अच्छा, मुझे गोल्ड में आपको ये भी दिखाना है मंडप, तो मैंने क्या किया है, दोनों तरह का काम छोड़ा हुआ है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो दिखाती हूँ मैं आपको वो कैसे करना है फटाफट से। और ये फिर हम लोग ये बनाएंगे एंड देन इट्स ओवर, द क्लास इज ओवर। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला, आई थिंक whosoever has not joined the session in the morning, तो उनके लिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ। हमेशा आप जब 3D आउटलाइनर यूज करेंगे तो आपको हमेशा जग देना है ना, ताकि उसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए। और उसको थोड़ा सा निकाल के कपड़े पे देख लीजिए, अपने पास एक रफ क्लॉथ हमेशा रखिएगा। और क्या करेंगे हम, देखिए आ जाइए पास, ये वाला पोर्शन है ना, इसको जब भी ये वाला काम आप करेंगे तो ऑल्टरनेट करेंगे, उसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक पोर्शन करेंगे फिर उसको सूखने देंगे और फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने रेक्टेंगल बनाया, इस तरफ करके दिखा दें, और फिर ऊपर से नीचे और नीचे से आप उसको फिल करते जाएंगे। इस तरीके से फिल करेंगे कि लाइंस नहीं आए। ठीक है, नीचे की तरफ आप फिल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं। और उसको लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे लेके जाना है हमें, जितना भर सके, जितना कलर आए उतना अच्छा, पर कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। आपको इक्वल प्रेशर लगाना है, हाँ, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। उसको एंड में ये चोंच नहीं आनी चाहिए, बैठा दीजिए। ठीक है, ये करा। उसके बाद 1 मिनट, हाँ मैंने स्टूल्स कहाँ रखे, 1 मिनट।